Arey guys, have you started preparing for exams? No, not yet. Have you started preparing for FC4? Yes, I've started with the FC4, but you know what? It is very confusing. Yes, exactly. It's so confusing, especially the education systems in ancient and all. Especially the system is very, very confusing. Arey, it's very simple. I'll explain you all. Don't you worry. Thank you so much, Vanita. Good morning, everyone. Good morning. How are you all? We are fine. So, shall we begin with our class? Yes. Okay. So, do you all know when and how the Buddhist system is started? Yes, we studied about it, but it is very difficult right now for me to recollect. Yes, I do know. Yeah, please tell me. As we know that Siddhartha Gautama was born in Kshatriya family, he used to go for wars. One day, while going for a war, he realized that there is nothing kept in wars and bloodshed. So he left everything and went to a place called Bodh Gaya, where he started meditating under a peepal tree. After meditating for a long time, he and defeating the demon Mara, forces of demon Mara, he reached enlightenment. So at the age of 35, he was called Gautam Buddha. Oh, very good. Now, have you heard about the aims of Buddhist education? No. Okay, I'll tell you the aims of Buddhist education. The core aim of Buddhist education is to reach the Nirvana stage. Nirvana stage is actually the liberation from all the sufferings, which is followed by eightfold paths. The eightfold paths are right speech, right view, right action, right livelihood, right mindfulness, right concentration, and right intention. Am I clear with these eightfold paths? Yes. Now I'll tell you the four noble truths of the Buddhist education. So first noble truth is our life is full of sufferings. Second is suffering is desire, and third is the end of suffering is possible, and fourth is this end is possible because by following the eightfold paths. Done? Am I clear with this? Yes. Thank you all. Now you can go to a next session. Thank you. Thank you. जी कहिए। मुझे मेरे पुत्र का यहाँ दाखिला करवाना है, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? आपका पुत्र कितने वर्ष का है? वो 8 वर्ष का है। अच्छा, तो उसे पाबजा समारोह करना पड़ेगा। ये पाबजा समारोह क्या होता है? पाबजा समारोह जिसमें उसे बाहर जाकर भिक्षा लेनी पड़ेगी और उसके बाद उसे उपनयन संस्कार करना पड़ेगा, जहाँ उसको संघ विहारा में हमारे साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद उसकी 12 वर्ष की प्रथम शिक्षा की समाप्त होगी। उसके बाद उसकी 10 वर्ष की उच्च शिक्षा की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के बाद उपसंपदा समारोह होगा, जो हमारी शिक्षा की अंतिम समारोह होगा। उसे कब से भेज सकती हूँ? आप उसे कल से भेज सकते हो। जी शुक्रिया। Good morning. गुड मॉर्निंग। How are you all? Okay, so now let's start with our class, okay? Wait. Sorry to interrupt you, but I want to know something about the previous life of a Bodhisattva. Yeah, sure. I will tell you one story about Mahakapi Jataka. बहुत समय पहले हिमालय के पहाड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर झील थी, जिसके पास एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पेड़ पर बहुत ही बड़े और सुंदर रसीले फल उगते थे। उस फल को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता था। इतना सुगंधित था और इतना ही रसीला वो फल था। उस पेड़ पर एक बंदरों का झुंड रहता था। उस बंदरों के सरदार का नाम महाकपि जातका था।
पर उस सरदार को एक चिंता आई। वह ये सोच रहा था कि अगर ये फल गांव के लोगों के हाथ में लग गया तो क्या हो सकता है। यह हो सकता है कि वो सब यहाँ आ जाए, उन पर आक्रमण करे और हो सकता है कि उन्हें वहाँ से जाना पड़े। और उन्हें ये लगा कि अगर लोगों ने उन पर आक्रमण किया तो उन्हें वह पेड़ छोड़कर जाना पड़ेगा और उनका जो घर है वह उनसे छिन जाएगा। फिर उसके बाद उसे एक योजना आई। उसने अपने सारे वासियों को इकट्ठा किया और उन्हें यह बताया कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि यह जो फल है वो लोगों के हाथों में ना आए। तो उन्होंने क्या किया, जो एक डाली थी जो बहुत ही नीचे झुकी हुई, जिससे यह हो सकता था कि वो फल टूटकर उस झील में गिर जाए और लोगों के हाथ लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस डाली पर नज़र रखा और यह देखा कि कहीं कोई भी फल उस डाली पर ना उग पाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से एक फल उस पर उग आया और बाकी लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। और जब वो फल पक कर जब नीचे गिर गया झील में तो एक मछुआरे के हाथ लग गया। और मछुआरा देखकर यह सोच रहा था कि यह फल इतना सुंदर और इतना सुगंधित कैसे है, मुझे यह फल लेकर राजा के पास जाना चाहिए। ठीक है। फिर वह मछुआरा वो फल लेकर राजा के पास चला गया। वह राजा वो फल देखकर इतना खुश हुआ, उसने यह देखकर इतना आकर्षित हुआ कि उसने उसे चखने चाहा। और जब उसने उसे चखा तो उसने उससे पूछा मछुआरे से कि यह फल तुम कहाँ से लाए हो, यह बहुत ही अच्छा फल है और मुझे तुम यह बताओ कौन से पेड़ से लेकर आए हो और मुझे भी वहाँ लेकर चलो। तो वह मछुआरा राजा को उस पेड़ के पास लेकर जाता है। उस पेड़ के पास गया लेकर राजा, फिर राजा ने देखा कि ये बंदरों के झुंड वहाँ पर रहे। तो उन्होंने तीर से आक्रमण करने के लिए कहा उस पेड़ पर। और जब तीर से आक्रमण हुआ तो वह झुंड तितर-बितर हो गया, बंदर बनने लगे और नीचे गिरने लगे। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। बंदरों का राजा देखकर इतना परेशान हो गया कि उस महाकपि जातका ने यह सोचा कि मुझे इन्हें बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वह बंदरों का राजा झील के उस पार गया, वहाँ पर एक बड़े से पेड़ पर खड़ा हुआ और उसने यह कोशिश की थी कि उसकी सबसे लंबी डाली को इतना झुकाए ताकि वह झील के दूसरी पार तक उनके जो रसीले फलों का पेड़ है उसके पास तक पहुँच जाए और वह सारे बंदर झील के इस पार आ जाए ताकि वह राजा से बच सके। फिर उसने डाली को बहुत झुकाने की कोशिश की, मगर डाली और पेड़ के बीच में इतना फर्क रह गया कि वह नहीं मिल पाया और बंदर नहीं आ पाए। तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथों से वह डाली पकड़ी और झुककर अपने पैरों से उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पकड़ी और अपने आप को एक पुल की तरह इस्तेमाल करके उस डाली को और पेड़ को जोड़ा। और उसने अपने झुंड के सारे वासियों से कहा कि आप मेरे ऊपर से चले जाइए और झील के उस पार चले जाइए ताकि आपकी जान बच सके। और वह सारे के सारे उसके ऊपर से चले गए, लेकिन उसे बहुत चोट लग रही थी। यह देखकर गांव का राजा यह सोच रहा था कि अरे वाह, ये कैसा प्राणी है कि इसे इतना चोट लग रहा है, इतना परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी यह हिल भी नहीं रहा है। फिर महाकपि जातका को इतनी चोटें लगी कि वह बेसुध हो गया। ठीक, मैंने उसे पेड़ से नीचे उतारा और उस महाकपि जातका से पूछा कि आपको इतनी चोटें लग रही है, इतनी हानि हो रही है आपको, लेकिन फिर भी आप वहाँ से हट क्यों नहीं रहे? तो उस महाकपि जातका ने ये कहा उसे कि राजा ही मदद कर सकता है जिन पर उन्होंने राज किया, और असली राजा वही होता है जो अपने राज के वासियों की सहायता करता है। यह बातें सुनकर गांव का राजा बहुत खुश हुआ और वह यह सोच रहा था कि यह आदमी इतना अच्छा कैसे हुआ, जबकि वह महाकपि जातका वह खुद ही बोधिसत्व थे, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहे।
सबको यह कहानी कैसी लगी? Thank you so much for this informative and interesting story. Thank you. तो बताओ तुम्हें ये कहानी सुनकर कैसा लगा? जी, हमें इसमें बोधिसत्व के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। चलो ठीक है, तो हम आगे की कक्षा शुरू करें। चलो अब हम लोग ध्यान लगाएंगे, ठीक है? चलो आप सब अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे अपनी जांघों पे रखो, ठीक है? आंखें बंद करो सब लोग और ध्यान लगाओ। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। अब ध्यान लगाकर को तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अभी। चलो अब हम आगे अपनी कक्षा शुरू करते हैं, ठीक है? Let us start our further discussion. Do you all remember about the 8-4 paths that we discussed earlier? Yes, we do know. Okay, so what are those? Yes, dear, you say? Right speech and right view. Okay. Right intention and right action. Yes. Right mindfulness and right concentration. And Right efforts. and Only this much. anything else? No. What about the right livelihood? Yes, right livelihood too. Oh, you forgot about the right livelihood. It's okay, dear. So now we'll have a debate about 8-4 paths, okay? Okay, so now the class ends here. Let's disperse.